Dear students, my name is Sunny Verma, faculty of LPC College in Mechanical Engineering Department. So students, today I will started to teach you BTHE subject, Basic of Thermodynamics, Hydraulics and Pneumatic Engineering. So this subject is related to automobile third sem students. So students, see this video. So this is you can see on your screen, this is a basic your syllabus content. Which chapter are added in your syllabus? Principle of thermal engineering, gas law, laws of thermodynamics, air cycle, air compressor, hydraulics, pneumatics, heat transfer, refrigeration and air conditioning, list of refrigeration and air conditioning. There are total 9 chapters in your syllabus. ठीक है student? So 6 practicals are also included in your syllabus. ठीक है students? ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਚੈਪਟਰ ਤੇ 6 ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ BTHE ਦੀ ਬੁੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ BTHE ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ 1 ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਬਜਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਚੈਪਟਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਐਂਡ ਨੋਮੈਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋਂ RAC ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ RAC ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨੋਮੈਟਿਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਰ ਆਰ ਟੋਟਲ 9 ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਯੋਰ ਸਿਲੇਬਸ। ठीक है, and 6 practicals. Subject name is BTHE, Basic of Thermodynamics, Hydraulics and Pneumatic Engineering। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਥਰਮਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੀਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सब तो पहला आप कीवर्ड्स पढ़ांगे। ठीक है, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होंगे जो बार बार इस्तेमाल होंगे थोड़े सबजैक्ट दे विच। सो सब तो पहला कीवर्ड हैगा हीट। तो हीट की है? हीट इज़ डिफाइंड एज अ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास। हीट की है? सब तो पहला समझो एक एनर्जी है। हीट इज़ वट? इट इज़ अ एनर्जी। सब तो पहला थोड़ा ये समझना पड़ेगा, हीट की है? एक एनर्जी है। इस कंसैप्ट में एक कह जी एनर्जी है जेड़ी कि इंग्लिश में बेसिकली लिखा है, मैं थोड़ा पंजाबी ट्रांसलेट करके दस रहा की मतलब है। ठीक है, तो हीट की है? बेसिकली अपनी एक एनर्जी है, कह जी एनर्जी है जेड़ी मास ਜਿਹੜੀ ट्रांसफ़र करती है एनर्जी ਨੂੰ बिना ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी ट्रांसफ़र ਹੁੰਦੀ है विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द डिफरेंस इन द टैंपरेचर ਦਾ डिफरेंस ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ एनर्जी ट्रांसफ़र ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੀਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੀਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ એનર્ਜੀ ट्रांसफ़र ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਦੇ ट्रांसफ़र ਹੋਏ। ठीक है, ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ट्रांसफ़र ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ट्रांसफ़र ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ?
ਹੀਟ। ਹੀਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਊ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਊਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ SI ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਦਾ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਜਾਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਮੋਡਸ ਆਫ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਸੋਲਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਹੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਗੈਸਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਵਰਕ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵਰਕ। ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਡ ਇਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ एक्स, यानी कि एक्स की हो गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेसिकली जिस साइड आप फोर्स लावांगे उस साइड ही वाल ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, एक्स डिस्टेंस से। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली तुसी गल नूं समझ गए होंगे हुण, ठीक है। हुण आपां अगे गल करते हैं एनर्जी बारे, ठीक है। हीट नूं तुसी समझ गए, हीट की है, हीट की है, एक एनर्जी है जिहदे विच हीट की है, एक एनर्जी है जिहड़ी ट्रांसफर होंदी है बिना किसी ट्रांसफर होए मास दे, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द डिफरेंस इन द टैंपरेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला हीट हो गया अपना, उस तो बाद अपना आंदा नैक्सट हो गया थोड़ा वर्क, ठीक है, मैं वर्क भी दसता, ठीक है। उस तो बाद आप चलते हैं नैक्सट टॉपिक है थोड़ा एनर्जी। एनर्जी की है, एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, जिहड़ी भी अपने काम करने की कैपेसिटी है उसनों आपां की कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी 2 तरह की होंदी है बेटा, स्टोर एनर्जी ते ट्रांजिट एनर्जी। स्टोर एनर्जी की होएगी, इट इज़ एनर्जी प्रोजेस्ड बाय अ सिस्टम विद इन इट्स बाउंड्री, जिहड़ी सिस्टम की बाउंड्री के अंदर होएगी एनर्जी उसनों की कहांगे, स्टोर एनर्जी। ट्रांजिट एनर्जी किहड़ी होएगी, द एनर्जी विच इज़ कैपेबल क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। बेसिकली जिहड़ी एनर्जी कैपेबल होएगी क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम उसनों की कहांगे, ट्रांजिट एनर्जी। जिवें हीट थोड़े सिस्टम नूं अगे बाउंड्री नूं क्रॉस कर जाती है उसनों आपां की कहांगे, ट्रांजिट एनर्जी। तो वर्क होएगा वो भी अपने सिस्टम की बाउंड्रीज़ नूं क्रॉस कर जाता है। इलैक्ट्रिकल एनर्जी जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी है अपनी वो सिस्टम की बाउंड्रीज़ नूं क्रॉस कर जाती है। बेसिकली जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है तो इंटरनल एनर्जी है वो अपनी सिस्टम की बाउंड्री के अंदर रहिंदी है। द एनर्जी विच इज़ कैपेबल डू नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, एम भी लिख सकते हो तुसी, इट इज़ एनर्जी प्रोजेस्ड बाय अ सिस्टम विद इन इट्स बाउंड्री, एम भी लिख सकते हो तुसी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैं एक बार दोबारा दस देना, हीट की है, वर्क की है तो एनर्जी की है, ठीक है। हीट की है बेसिकली एक एनर्जी है जिहड़ी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, ठीक है। 3 तरह की हीट होंदी है, कंडक्शन, कन्वैक्शन, रेडिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस बाद थोड़ा हैगा वर्क, उस तो बाद हैगा थोड़ा एनर्जी। एनर्जी में मैं एक बार दोबारा दस देना, एनर्जी की है बेसिकली एक
कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी दो तरह की होगी, स्टोर एनर्जी, ट्रांजिट एनर्जी। स्टोर एनर्जी जिहड़ी सिस्टम की बाउंड्रीज़ नूं अंदर होवे, सिस्टम की बाउंड्री के अंदर होवे, उसनूं आपां की कहते हैं, स्टोर एनर्जी। ट्रांजिट एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होएगी जिहड़ी सिस्टम की बाउंड्री दे क्रॉस कर जाएगी, उसनूं आपां की कहांगे, ट्रांजिट एनर्जी। ठीक है, जिवें हीट, वर्क ते इलैक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां नैक्सट टॉपिक वाल चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला अपना जिहड़ा टॉपिक हैगा वो हैगा सिस्टम। सिस्टम नूं आपां की कहते हैं, सिस्टम इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जिन्ना भी होएगा वो की होएगा, सिस्टम। और प्रिस्क्राइब्ड रीजन इन अ स्पेस अपॉन विच द अटेंशन इज़ फोकस फॉर स्टडी। जिहदे उत्ते आपां अटेंशन कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं स्टडी लई, उसनूं आपां की कहांगे, सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, सिस्टम की है बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए प्रिस्क्राइब्ड रीजन इन अ स्पेस अपॉन विच द अटेंशन इज़ फोकस फॉर स्टडी। कोई भी स्पेस, कोई भी रीजन जिहदे उत्ते आपां फोकस कर रहे हैं स्टडी वास्ते, उस रीजन नूं आपां की कहांगे, सिस्टम। ठीक है, कोई भी स्पेस, बस तुहानूं इस गल नूं याद रखना है, स्पेस, रीजन इन द स्पेस। ठीक है, जो भी रीजन है, स्पेस है, उस ते आपां अटेंशन कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं स्टडी दे लई, उसनूं आपां की कहांगे, सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, या क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिन्नी भी मात्रा है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर मीनस वो जिन्नी भी मात्रा है वो की कहवाएगा, पंजाबी च जे मैं कहां तो की उसनूं की कहांगे, सिस्टम। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन है, और ए प्रिस्क्राइब्ड रीजन इन स्पेस अपॉन विच द अटेंशन इज़ फोकस फॉर स्टडी। जिस रीजन स्पेस के उत्ते आपां फोकस कर रहे हैं, ये बस ये लाइन तुसीं याद रखनी है, रीजन इन अ स्पेस अपॉन विच द अटेंशन इज़ फोकस फॉर स्टडी, उसनूं आपां की कहांगे, सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां अगे चलते हैं। सराउंडिंग, सराउंडिंग की हो गया, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज़ कॉल्ड सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। हुण जो भी सिस्टम दे आले बाहर वाल है, एक्सटर्नल है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्री। इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेलप इन विच सैपरेट द सिस्टम फ्रॉम द बाउंड्रीज। हुण एक कहो जिहा इन्वेलप है, कहो जी लाइन है जिहड़ी कि सिस्टम ते सराउंडिंग्स नूं अलग कर दी है। द बाउंड्री मे बी ए रियल और इमेजनरी। तुसीं फिगर 1 दे विच देखो, मैं तुहानूं जूम करके दिखा रहा। ये थोड़ा फिगर नंबर 1 है, तुसीं देख सकते हो। बेसिकली ये तुसीं देखोगे सिस्टम है जिहड़ा अपना सेंटर दे विच, उहदे आले दुआले बाउंड्री है तो उहदे साइडां दे विच सराउंडिंग है, इसनूं आपां इन्वायरमेंट भी कहते हैं। बाउंड्री की है, तुसीं देख रहे हो, सिस्टम उहदे सेंटर दे विच है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, पता लग गया थानू सारिਆਂ ਨੂੰ। सिस्टम, सराउंडिंग ते बाउंड्री थानू मैं डायग्राम दिखाती है, फिगर नंबर 1 तुसीं इसनूं देख लेना, थानू जूम करके भी दिखाती है। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आंदा है यूनीवर्स, ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। हुण जदों सिस्टम ते सराउंडिंग दोनों मिल जाणगे तां ये की बनूगा, यूनीवर्स। ठीक है, तुसीं देख सकते हो फिगर 1 दे विच। ठीक है, सिस्टम ते सराउंडिंग जदों दोनों मिल जाणगे तां वो की बनाणगे, यूनीवर्स। मैं पंजाबी च दसदा जा रहा, इंग्लिश तुसीं पढ़ी जाना। ठीक है, उस तो बाद आंदा अपना स्टेट, द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है बेटा, द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। हुण तुसीं स्टेट नूं बहुत ध्यान नाल समझना, जिहड़ी ये लाइन है, द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही मतलब है स्टेट का। स्टेट की मतलब हो गया कि जिहड़ी भी कंडीशन है सिस्टम की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब बाय इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो भी कंडीशन है सिस्टम की, सिस्टम कूल है कि हॉट है, कि बहुत ज़्यादा कूल है, कि बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है, गर्म है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, जो भी सिस्टम की कंडीशन होएगी उस दिते हुए समय दे विच, ठीक है, बाय इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़
जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होणगियां उस समय के दौरान, ठीक है, उसनों आपां की कहांगे कंडीशन ऑफ द सिस्टम। तो कंडीशन ऑफ द सिस्टम की हो गया स्टेट, उसनों आपां की कहांगे स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेट की हो गया द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो भी कंडीशन है सिस्टम की वो उसनों की कहांगे उसकी स्टेट है। वो चाहे वो सिस्टम गर्म है, चाहे वो ठंडा है, चाहे बहुत ज़्यादा गर्म है, चाहे बहुत ज़्यादा ठंडा है, जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होणगियां उस समय दे विच, ठीक है, उसनों आपां की कहांगे स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, उस बाद नैक्सट टॉपिक है अपना इंटरनल एनर्जी। इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। ठीक है, जिन्नी भी एनर्जी स्टोर होएगी, मैं पंजाबी च दस रहा, इट इज़ एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी, जो भी एनर्जी स्टोर होएगी बॉडी दे विच, ठीक है, उसनों आपां की कहांगे इंटरनल एनर्जी। और ए सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूल अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बेसिकली तुसी ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इस डेफिनेशन को दोबारा दस देना। इट इज़ अ एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी और ए सिस्टम, या तो यह बॉडी च स्टोर होएगा या सिस्टम के एनर्जी जी स्टोर होएगी। ठीक है, जी भी एनर्जी बॉडी के अंदर या सिस्टम के अंदर, यदा मतलब ये है ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसनों आपां की कहांगे इंटरनल एनर्जी। जी भी एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर है या सिस्टम के अंदर स्टोर है, क्यों स्टोर है, क्योंकि ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਈ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण अपना नैक्सट टॉपिक हैगा टैंपरेचर। हुण जिहड़ी हीट है, हीट नूं आपां ये पता करना है कि उसकी डिग्री ऑफ हॉटनैस कितनी है। जिहड़ी आपां डिग्री ऑफ हॉटनैस उसकी पता करांगे, डिटरमाइन करांगे, उसनूं आपां की कहांगे टैंपरेचर। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स, टैंपरेचर इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हॉटनैस और लेवल ऑफ द हीट इंटेंसिटी ऑफ द बॉडी। टैंपरेचर इज़ मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज अ थर्मामीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली यही कहना चाहता है कि डिग्री ऑफ हॉटनैस जदों आपां किसी चीज़ का पता करांगे, किसी सिस्टम का, किसी मास का, ठीक है, उसनूं आपां की कहांगे टैंपरेचर। ठीक है, ये किवें पता करांगे, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो तरह के थर्मामीटर स्केल्स लिते जाते हैं, सैल्सीਅस स्केल तो फैरनहाइट स्केल। सैल्सीਅस स्केल दे विच की हुंदा है, जिहदे विच फ्रीजिंग पॉइंट है जिहड़ा वाटर का वो 0 मार्क किया जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट है जिहड़ा वाटर का वो 100 मार्क किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द स्पेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजनस एंड ईच डिवीजन शोज़ 1 डिग्री सैल्सीਅस। ये जिहड़े स्केल हैगा उसनूं 100 डिवीजनस दे विच डिवाइड किया गया, तो हर एक जिहड़ा डिवीजन है वो शो करता है 1 डिग्री सैल्सीਅस नूं। सो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर यूज़ दिस स्केल। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंजीनियर्स ते साइंटिस्ट इसी स्केल नूं यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जिहड़ा फ्रीजिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सैल्सीਅस 0 डिग्री सैल्सीਅस है, तो जिहड़ा बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सैल्सीਅस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली तुहाडा सैल्सीਅस स्केल हो गया, जिन्होंने सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है तुहाडा फैरनहाइट स्केल। तो इस स्केल के की होंदा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ मार्क एज 32। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 32 लेंदे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का 212 लेंदे हैं। मैं पंजाबी च सीधा ही दस रहा, तुसी स्क्रीन दे विच इंग्लिश दे विच पढ़ते जाना। ठीक है, मैं सीधा ट्रांसलेट करके दस रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, तां करके। द स्केल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज़ डिवाइडेड इंटू 180 इक्वल डिवीजन एंड ईच डिवीजन शोज़ द 1 फैरनहाइट। तो ये स्केल बेसिकली ये 2 पॉइंट्स ने जिन्होंने 180 डिवीजनस दे विच डिवाइड किया गया। ईच डिवीजन शोज़ द 1 डिग्री ऑफ फैरनहाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली 2 स्केल्स ने, सैल्सीਅस का स्केल तो फैरनहाइट का स्केल। अपने जो साइंटिफिकली ज़्यादातर सैल्सीਅस का स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, उस तो बाद ये बेसिकली थोड़ा टैंपरेचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तुसी इसनों मैं एक बार फिर दस दिना, जी डिग्री ऑफ हॉटनैस है
ठीक है स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ हॉटनेस, बस इस लाइन ਨੂੰ याद रखना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पता करनी है ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ पता करांगे, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਹੌਟਨੈਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है, कि कितना डिग्री ऑफ हॉटनेस है, किन्नी गर्म है कोई चीज़, किन्नी डिग्री गर्म है, वो बेसिकली आपां नूं टैंपरेचर तो ही पता लगता है। तो किन्नी डिग्री गर्म है वो बेसिकली थर्मामीटर दसूगा आपां नूं। ते थर्मामीटर दो तरह के स्केल यूज़ होंदे हैं टैंपरेचर नप्पण लई। ठीक है, सेंटीग्रेड का स्केल जिन्होंने सैल्सीयस स्केल भी कहते हैं, तो फैरनहाइट का स्केल, वो बारे में तुहानूं दस चुके हैं। ठीक है, हुण आपां नैक्सट टॉपिक ते चलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर की हुंदा है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर। एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर उन्होंने कहेंगे इज डिफाइंड एज द टैंपरेचर बिलो विच द टैंपरेचर ऑफ एनी सबसटांस कैन नॉट फॉल। किसी भी सबसटांस का टैंपरेचर इस तो थले नहीं जा सकता। जिमें एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर किनू कहते हैं, -273 डिग्री सैल्सीयस। ठीक है, ये जो टैंपरेचर है, सो मैं एक बार दोबारा दस देना। एब्सोल्यूटली जीरो टैंपरेचर इज़ डिफाइंड एज द टैंपरेचर बिलो विच द टैंपरेचर ऑफ एनी सबसटांस कैन नॉट फॉल। किसी भी सबसटांस का इस तो थले टैंपरेचर नहीं जा सकता, जिमें कि -273 डिग्री सैल्सीयस, उसनों आपां की कहांगे, उस टैंपरेचर नूं आपां की कहांगे, एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर की वैल्यू की है -273 सैल्सीयस स्केल दे विच, -460 फैरनहाइट स्केल दे विच। ठीक है बेटा, तुसीं देख सकते हो स्क्रीन के उत्ते, किसी बॉडी का किसी सबसटांस का इस तो थले टैंपरेचर नहीं जा सकता -273 डिग्री सैल्सीयस तो। ठीक है, -260 हो जाएगा, -150 हो जाएगा, लेकिन तुसी कहो कि -450 हो जाए, -280 हो जाए, वो नहीं होएगा। ठीक है, इस तो बिलो ही रहेगा, इस तो ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर डिफाइंड एज द टैंपरेचर बिलो विच द टैंपरेचर ऑफ एनी सबसटांस कैन नॉट फॉल। ठीक है, ये जी वैल्यू हैगी एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर की -273 डिग्री सैल्सीयस। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां नैक्सट टॉपिक वाल चलते हैं। हुण अपना नैक्सट टॉपिक हैगा थर्मोडायनमिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हैगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सैकेंड प्रॉपर्टी हैगी अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप समझते हैं पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी किनू कहते हैं, द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। जिहड़ी प्रॉपर्टी मैं पंजाबी ट्रांसलेट कर दे रहा, जिहड़ी प्रॉपर्टी निर्भर नहीं करती किहदे उत्ते, मास ऑफ द सिस्टम के उत्ते, उस प्रॉपर्टी नूं आपां की कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिवें एग्जाम्पल हो गया टैंपरेचर, प्रैशर, विस्कोसिटी ते डेंसिटी। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर दस दिंदा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन्होंने कहते हैं जिहड़े कि मास ऑफ द सिस्टम के उत्ते निर्भर नहीं करते, डिपेंड नहीं रहती। ठीक है, जिवें तुहाडा टैंपरेचर, कोई भी मास है, कोई भी ऑब्जैक्ट है, उसका अपना मास होएगा। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी उन्होंने कहते हैं जिहड़ा उन्हां दे मास के उत्ते निर्भर ना करे, दैट इज़ नोन एज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उस तो बाद तुहाडा आंदा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द मास और साइज़ ऑफ द सिस्टम। जिहड़ी कि मास और साइज़ ऑफ द सिस्टम ते निर्भर करे, डिपेंड करे, उसनूं आपां की कहंदे आ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिवें तुहाडी एनर्जी ते वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार देख लो इसनूं सारे जने, फिर आपां अगले टॉपिक ते चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां नैक्सट टॉपिक ते चलते हैं, इंथैल्पी। मैं फिर एक बार दस दिंदा, इंटेंसिव वो प्रॉपर्टी है जिहड़ी मास के उत्ते डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी जिहड़ी मास के उत्ते निर्भर करती है। ठीक है, हुण अपना नैक्सट टॉपिक है इंथैल्पी। इंथैल्पी बेसिकली क्या होंदा है, द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, जिन्नी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी है, एंड प्रैशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट,
ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, U ਇਜ਼ ਆਵਰ એનર્ਜੀ, P ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ V ਇਜ਼ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ U ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, in another word the total heat energy contained in a gas, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਐਸ ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।